So in the previous lectures, different types of V belt drives and synchronous belt drives. Today we'll learn about chain drives. Chain drives क्या होती हैं, किस तरह से categorize कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको select कर सकते हैं, and what are the different standards available for choosing the power ratings and styles of the chain drives. सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो हाँ कहना था कि रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दें काइंडली। जी, वो recordings मेरे पास available है, मैं वो एक दो दिनों में अपलोड कर देता हूँ. सर एक्चुअली So लैब की प्रैक्टिस करनी थी जो प्रीवियस थी, तो वो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी। चलें ठीक है, मैं उनको जो सा वो अपलोड करता हूँ. जी सर, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा बहुत शायद अब इतला तो खैर हमसे पहले ही पहुंच लोग जाती है इस तरह कि आप लोगों के पास कि मिड टर्म का जो स्केड्यूल है वो चेंज हो चुका है शायद. तो प्रॉबेबली सर देयर विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम या भी जो भी उसका होगा वो बाद में डिसाइड होगा. लेकिन जो सा हमारा कोर्स वर्क होगा वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा. अभी लैब भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी. तो it will be more of a self practice for you guys for now. इससे रिलेटेड जो भी हम असाइनमेंट्स या evaluations होगी वो उसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे. सो एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारा क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसे चल रहा था तो इट्स लिटिल इजियर फॉर अस टू एडजस्ट टू इट फॉर नाउ. अच्छा जी, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन ड्राइव्स. चेन ड्राइव्स के अंदर बेसिकली होता ये कि देयर आर मल्टीपल लिंक्स that are connected to one another through some connectors, and it's made of a series of pin connected joints. Or the design provides flexibility, and while it also enables the chain to transmit large tensile forces, so it has a working side or a tight side. It also has a slack side, and so this is more of a thing that is closely related to the synchronous belt drive. उसके अंदर भी एक tight side होती है, उसके अंदर भी एक slack side होती है. It also has sprockets on it that has teeth. But the main difference is that this one is made of discrete links. These links can be removed and added into the chain. So if one of the links gets damaged, तो आप उसको change कर सकते हो, replace कर सकते हो, या इसके अंदर नए links add कर सकते हो to add into the chain length, या इसको reduce कर सकते हो to reduce the chain length. There is also a key difference between the sprockets used for synchronous belt drives and chain drives, and those differences are basically that these the sprockets made for chain drives are usually made from metals, and they have a solid body. तो वो थोड़ा सा इसमें फर्क है कि इसकी जो कनेक्शन है ये नॉर्मली स्प्रॉकेट के साथ ही आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई स्लीव वगैरह एडेड नहीं है. तो you mount it directly onto the shaft in many cases. So the distance between two discrete unit in the chain is known as the chain pitch. इसको आपने याद रखना है because chain pitch is the parameter that we will use to define ratings for the chain. Chain drive की basic examples हमने देखी थी. Chain drives are used for many applications. The foremost that comes to the mind would be Chingchi rickshaws and motorcycles, जिसके अंदर the power of the engine is transmitted to the wheel axle uh, through a chain drive. और वो chain drive जो सी होती है that engages the sprocket on both ends और उसको जो सा होता है वहाँ पे ट्रांसमिट करती है. इसके अलावा बाइसाइकिल्स के अंदर भी जो सा है वो प्राइमरीली चेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है. तो जितने बाइसाइकिल्स होते हैं उसके अंदर भी आपको चेन ड्राइव जो है वो सामने नजर आ रही होती है. सो वी आर ऑल फेमिलियर विद द बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ चेन एंड अ स्प्रॉकेट फॉर पावर ट्रांसमिशन. यही जो सा प्रिंसिपल नॉर्मली यूज होता है इंडस्ट्रियल चेन ड्राइव्स के अंदर भी, और उसी को जो सा होगा वो हम एक्सप्लोर करते हैं मजीद आज. The most common type of a chain is called a roller chain.
There are other types of chain as well, but the most common one is called a roller chain, and this is the one that we normally see on a motorcycle or on a bike. And this one provides low friction between the chain and the sprockets, and this one is easier to manufacture. इसके और जो से होते हैं वो different benefits. So it is primarily classified by its pitch, which is the distance between corresponding parts of adjacent links. तो दो links के दरमियान में जो सा होगा, अगर आप measure करना लगो तो जो distance होगा उसको आप chain pitch कहते हो. And a standard roller chain carries a size designation from 40 to 240. तो क्योंकि यूएस डेजिग्नेशंस हैं ये, तो इसका मतलब है कि ये इंचेस के अंदर इसकी जो सी होगी पिच वो कैलिब्रेटेड होगी. सो फॉर एग्जांपल, a number 100 chain has a pitch of 10 by 8 or एक 1.25 inches. तो इसका मतलब ये हुआ है कि the chain number, this basically shows the size in 1/8 of an inch. The first two digits, they represent the chain size in 1/8 of an inch. तो अगर 100 है चेन साइज, इसके अंदर जो पिच होगा वो बेसिकली होगा 10 into 1/8 inches, और उस हिसाब से जो सा होगा वो हम इसका साइज डिटरमिन करते हैं. वो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा इसका जिक्र किया था कि 1/8 of an inch is in common terms sometimes described as सूत्र. तो इसका मतलब होगा कि 10/8 जो सा उसका साइज है. तो ये 10/8 जो सा होगा वो 10 सूत्र बेसिकली बनेगा. 10 सूत्र इसका पिच है. तो the various tensile strength for chain sizes are listed in table 7-12, वो हम visit करेंगे. ISO standards also define different chain sizes which are represented in metric units. So ISO standards जो बाकी दूसरे होंगे, they are representing the chain size based on the pitch length in metric units, जो कि millimeters के अंदर होगा. Excellent, That sir. data is given in table 7-13. Table Sir, it's 7-12 represents chain numbers, जिसको आप chain size भी कह सकते हो. उसके corresponding average ISO का जो size है representation है वो 4A है, which is in represented in metric units. लेकिन ISO standard जो सा होगा that is responsible for defining chain sizes is ISO 10823. The pitch length in inches is 1/4, and average tensile strength in pound is 925 pounds. तो जैसे जैसे चेन का जो पिच साइज है वो बड़ा होता जा रहा है, या चेन का नंबर जो सा बड़ा होता जा रहा है, आप ये देख रहे हो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इट कैन कैरी आल्सो इंक्रीजेस. उसके लिंक जो से होते हैं वो ज्यादा बड़े होते जाते हैं, तो दे कैन कैरी मोर वेट. इसी तरह से टेबल 7-13 है दैट रिप्रेजेंट्स metric roller chain sizes and strength. जी सर, ये पिच साइजेस इतने ज्यादा रिमाइंड कैसे रहेंगे? मतलब कोई फॉर्मूला है इनका फाइंड करने का? नहीं, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफाइन किए हुए हैं. इनमें से एक जो स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट है वो आज मैं आपसे शेयर भी करूंगा. ये प्री डिफाइंड है. ये मैं रिमाइंड. ओके सर. ये साइजेस जो से हैं ये प्री डिफाइंड है, ये फिक्स्ड हैं. इसको आप ना अपनी मर्जी से अब डिफाइन कर सकते हो ना इसको जो सा वो आप ये आपने बेसिकली या तो याद करने हैं, या आपके पास जो सा होगा वो बुक अवेलेबल होगी, वहां से आप देख सकते हो, या आपके पास इंटरनेट के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स ये जो नाम जिस तरह से भी पिछली स्लाइड के अंदर था ISO 10823, इस स्टैंडर्ड को जब आप सर्च करोगे तो इसके डॉक्यूमेंट के अंदर जो सा होगा ये सारी साइजेस मेंशन्ड होंगे. तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो एग्जाम के अंदर आपके पास बुक अवेलेबल होगी, ओपन बुक होगा, हार्ड फॉर्म के अंदर हो, या आपके पास नोट्स होंगे आपके, आप उसमें लिख सकते हो. तो वहां से आप इसको जो सा होगा वो देख सकते हो. सर
सर अभी आपने So चेन नंबर 606 जी सर अभी आपने चेन नंबर 100 का पिच साइज 10/8 बताया था 10 और by 8 इंचेस, हाँ जी। इसमें चेंज लिखा हुआ है 5/4 इंचेस लिखा हुआ है टेबल में 5 या by 4 1/4 या 5/4 तो 1 into 1 by 4 ये वही बन जाएगा ना, 10 by 8 बन जाएगा। 10 by 8 हो या 5 by 4 हो, एक ही बात है। ओके ठीक है सर थैंक यू 1.25 इंचेस बनता है। 10 by 8 भी 1.25 है, 5 by 4 भी 1.25 है। अच्छा, anyways, the metric sizes are represented as like 4A, 4B and so on. तो इसके अंदर ISO 606 represents general purpose power transmission for metric roller chain sizes, और उसके अंदर chain number है जी 4B, 5B, 6B and so on. So today we'll do one example using the metrics, the US designation sizes inches के अंदर एक किस तरह से आपने करना है, और फिर maybe tomorrow we'll do some practice problems. तो उसके अंदर जो सा होगा वो हम एक different जो सा होगा problem choose कर लेंगे, जिसके अंदर जो सा होगा वो ISO के हम designations को choose कर सकते हैं. So it also gives us an idea of the pitch in inches and millimeters. It also gives the braking strength in pounds and kilonewtons, and some other alternate designation if there is also present. तो ये कुछ information हमें table 7-13 में मिलेगी. इसी table के अंदर there is another section that is representing heavy duty power transmission chains. तो heavy duty power transmission chains और उसके ISO designations 2010, 25, 12 इस तरह से जो कुछ numbers हैं यहाँ पे दिए हुए हैं. Once again, pitch in inches and millimeters and braking strength in pound and kilonewtons. And the third section of the same table 7-13, this gives us an estimate of chain numbers used for agricultural uses. ISO 487 इसकी जो सी है वो डेजिग्नेशन है, या इसका जो स्टैंडर्ड नंबर है. इसके अंदर चेन साइजेस जो से वो S32, S42 इस फॉर्म के अंदर गिवन है. And the pitches are in inches and millimeters. वो दोनों इसके साथ रेफरेंसेस हैं, और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो सी है वो दी हुई है. अच्छा, remember one thing, that all the discussion that we have done so far has been done for the roller chain. roller chain के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, there is a roller on both end of the pitch link. एक लिंक के दोनों तरफ जो सा ये रोलर एलिमेंट होता है, जिसके ऊपर चेन या स्प्रॉकेट का जो सा होता है वो स्लाइड कर सकती है. सो दिस कैन काइंड ऑफ रोटेट इनसाइड ऑफ द चेन लिंक, और जिसके ऊपर जो सा होता है वो स्मूथ ट्रांसमिशन जो सा होता है वो पॉसिबल होती है. सो देयर आर साइड लिंक्स, देयर इज अ पिन कनेक्शन एट बोथ एंड. तो दो साइड लिंक्स हैं, और दरमियान में जो सा होंगे ये दो रोलर कनेक्शन है. दिस इज one link, and basically ये जो डिस्टेंस अभी मैंने हाईलाइट किया, दिस इज द पिच ऑफ द चेन. तो एक लिंक के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे. बेसिकली एक जो सा मेरे पास ये आउटसाइड जो सा इसके बनेगा ये वाला पार्ट है, एक जो अंदर की तरफ का पार्ट है वो. सो दिस इज अ रोलर स्ट्रैंड फॉर अ सिंगल. इसी तरह से मल्टीपल स्ट्रैंड रोलर चेन्स भी हो सकती हैं, जिसमें से 2 स्ट्रैंड है, जिसके अंदर दो रोलर चेन्स को आपस में ज्वाइन किया होता है यूजिंग द सेम पिन. दिस इज आल्सो अवेलेबल विद 3 and 4 स्ट्रैंड्स. फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्ट्रैंड्स के अंदर भी अवेलेबल होती हैं. सो द चेन्स रन ऑन मल्टीपल स्प्रॉकेट्स इन दिस केस. इसी तरह से हैवी सीरीज रोलर चेन है, जो कि इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी रोलर चेन्स जो भी हमने जिक्र किया था, उसमें फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर ये जो साइड वाले लिंक्स होते हैं ये ज़रा चौड़े होते हैं. दे कैन कैरी मोर लोड, दे कैन कैरी मोर वेट. Sometimes there are also
different other categories like the double pitch drive chain. This one has elongated links, तो जिसके अंदर pitch जो सी है वो basically आपकी ज़्यादा है, 2 times है. इसी तरह से नीचे जो सा एक और कैटेगरी गिवन है, दिस इज द डबल पिच कन्वेयर चेन. तो ये इसकी कुछ कैटेगरीज हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इज द रोलर वन. वो हम जो होगा वो आगे उसको एक्सप्लोर करेंगे. इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस चेन ड्राइव्स की जो सी हैं वो कन्वेयर्स के अंदर भी होती हैं, इन विच द चेन ड्राइव्स आर directly used as conveyors to transport material in the industry. So for example, there can be some attachments to the chain, जिसको slat type attachments हो सकती हैं that can create a flat surface on the chain for transmitting material. इसके चेन के ऊपर, चेन के लिंक्स के ऊपर और डिफरेंट तरह के अटैचमेंट्स की जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल दिस वी ब्लॉक is is used to convey round objects of varying diameters. इसी तरह से जो सा वो spacers के थ्रू जो सा इसकी अटैचमेंट की जा सकती है to convey and position long objects. तो इसके अंदर होगा कुछ प्रोसीजर इस तरह से होता है कि हमारे पास एक चेन मैकेनिज्म है which is longer in length and it also has a parallel one running in parallel with it. और इसके दरमियान में आप जो सा होता है वो डिफरेंट कनेक्शंस क्रिएट करके एक कन्वेयर टाइप का स्ट्रक्चर जो सा वो आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हो. और फर्दर इसके अंदर कुछ और टाइप्स हैं chain key that have a different type of link. So this one is a mill narrow सर ये series जो chain. पीछे वी ब्लॉक थी सर, वो भी इसी तरह बता दें कन्वेयर की तरह. सर जो प्रीवियस स्लाइड पे वी ब्लॉक. जी वी ब्लॉक भी कन्वेयर टाइप की इसके अंदर ही होती है. तो इसके अलावा कुछ और चेन की ये टाइप्स हैं, ये आपकी बुक के अंदर जो सा वो दी हुई है. इनकी शेप फर्क हो सकती है, इनकी जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं, जो सिंगल यूनिट एंड डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ये फर्क हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल द थर्ड वन हियर इज द डिटैचेबल चेन. इसके अंदर जो डिस्क्रीट लिंक्स हैं उनको निकाला जा सकता है और उसके उसी तरह से लगाया जा सकता है. तो लेकिन the basic principle of operation is same. There are sprockets on which different connected links run and they transmit power, and usually these are made from metals. So ये metallic सारे जिसके links होते हैं और metallic sprockets होती हैं. और finally इसकी जो designation है वो उसी तरह से होती है कि it has pitch length, और इसकी जो हम length वगैरह को measure करेंगे वो multiple pitches के अंदर करेंगे. 100 pitches इसकी जो सी होगी, pitch length होगी and so on. अब मसला ये है कि चेन ड्राइव्स को डिजाइन करना है या सिलेक्ट करना है. Before that we need to understand different types of stresses that the chain has to go through. जब हमें उसके फेलियर मोड्स का पता लग जाएगा कि इसमें किस किस तरह से फेलियर हो सकता है, फिर हम उसको अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक बेहतर तरीके से चूज कर सकते हैं. Because of the fact that the chain is consisted of different links connected together, यहाँ पे जो major failures हैं chain के अंदर वो 3 तरह के हो सकते हैं. Number 1, fatigue of the link plates due to repeated application of the tension in the tight side of the chain. ये जो link plates हैं जिन्होंने इस रोलर को जो सा वो काबू किया हुआ है, when transmitting loads, तो not all of the links are engaged at all the time. जब ये लिंक्स जो से होंगे स्प्रॉकेट पे होंगे तब ये पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं. जब ये लिंक्स जो से होंगे वो टाइट साइड के ऊपर हैं तब ये पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, पे लोड जो से वो टेंसाइल लोड कैरी कर रहे हैं. बट व्हेन दे आर ऑन द स्लैक साइड तो इसके ऊपर लोड जो सा होगा कहीं रिड्यूस हो जाता है. तो दे आर अंडरगोइंग दैट साइक्लिक लोडिंग, तो जिसकी वजह से इनमें फटीग फेलियर हो सकता है. फटीग फेलियर हमने काफ़ी डिटेल में जो सा था वो देखा था.
So there can be fatigue failure of the link plates due to repeated application of the tension in the tight side of the chain. इसी तरह से there is another failure that can be due to the impact of the rollers as they engage. चलिए जी, finally there is another type of failure which is called galling between the pins of each link and the bushings on the pin. And this failure is basically in the links जिसके ऊपर जो सा होगा ये rollers जो सा वो connected है. तो and these links are represented basically on the last page जो यहाँ पे given है on the left side. यहाँ पे आप देख सकते हो कि the rollers are mounted onto the links on the pin connected joints. और इसके ऊपर जो सा होगा वो, अब आपने ये देखा है कि हमारे पास 3 की एलिमेंट्स हैं इस चेन के अंदर, रोलर चेन के अंदर. एक तो रोलर है जिसने जो सा होगा वो स्मूथ मोशन प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग एंगेजमेंट विद द स्प्रॉकेट. देयर आर द मेजर लोड कैरिंग एलिमेंट्स जो कि उसके साइड लिंक्स हैं, और तीसरा ये पिन है जो कि इनको आपस में कनेक्ट कर रही है. तो इन तीनों में से किसी पे भी फेलियर जो है वो हो सकता है. और टाइप जो सी है उसकी वो फर्क है. द फर्स्ट वन मे बी फटीग, इसके अंदर इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है. इसके अंदर जो सा ब्रेकेज वैसे भी हो सकती है कि इफ यू एक्सीड द लोड कैपेसिटी ऑफ द चेन, उसकी वजह से भी ब्रेकेज हो सकती है इसके अंदर. मोस्ट ऑफ द रेटिंग्स दैट आर गिवन फॉर चेन्स आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा, जिसके अंदर जो सा वो आपने ये एज्यूम किया हुआ है कि जी स्मूथ लोड है, सर्विस फैक्टर 1 का है, और रेटेड लाइफ जो सी है वो तकरीबन 15,000 आवर की है. सो जो फटीग के जो लोडिंग के लिए जो इसको अब डिज़ाइन किया गया, दैट इज़ फॉर 15,000 आवर्स ऑफ लोडिंग. उसके बाद जो सा वो इसकी जो डेजिग्नेशन है वो आपको अब खुद से देखना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा. Anyways, tables 7-14 to 7-16 list rated power for 3 sizes of standard chain: number 40, number 60 and number 80. So half inch pitch, 3 by 4 inch pitch and 1 inch pitch, इन तीन के लिए जो सा वो डाटा बुक में दिया हुआ है. बट आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू गाइस जिसके अंदर बहुत सारी जो है चेन नंबर्स का डाटा वहाँ पे गिवन है. एंड प्रोबेबली द डाटा इन द बुक इज फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट जो कि बेसिकली अमेरिकन चेन एसोसिएशन की तरफ से दिया हुआ है. इसके अलावा डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो कि चेन सप्लाई करते हैं, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डाटा, और जो भी उनसे रिलेटेड जो सा डाटा होगा वो उनकी अपनी कैटलॉग के अंदर भी दिया हुआ है, और वो भी जो सा होगा वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो अगर आपने किसी भी तरह का सिलेक्शन करनी है. अच्छा, कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग चेन ड्राइव्स, वो एक दफा देख लेते हैं. कि these ratings are based on the size of the smaller sprocket, size and speed of the smaller sprocket, and an expected life of approximately 15,000 hours. तो जो भी कैटलॉग में डाटा होगा, जो अमेरिकन चेन एसोसिएशन की तरफ से एक पूरा जो उनकी जो डाटा जो कैटलॉग है, so that is based on an expected life of about 15,000 hour. Secondly, for a given speed, the power capacity increases with the number of teeth on the sprocket. कि अगर आप कुछ भी ना करो, आपका सारा कुछ सेम है, तो जनरली आपकी पावर कैपेसिटी जो सी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर आप अपने जो स्प्रॉकेट साइज है उसको इंक्रीज कर लो. नंबर ऑफ टीथ जो से ऑन द स्प्रॉकेट उसको आप बढ़ा लो. अब चेन ड्राइव की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक इनिशियल नोट है, वो ये है कि चेन ड्राइव्स आर नॉर्मली यूज्ड वेयर यू वांट टू ट्रांसमिट लार्जर पावर्स at lower RPM. So usually chain drives are run at lower RPM than the synchronous belt drive or the V belt drives. और इसके अंदर जो सा है वो जो पावर ट्रांसमिशन की रेशियोज हैं वो भी उसी तरह से हैं कि हम गियर रिडक्शन के अंदर तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रेशियोज अचीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिडक्शन अचीव कर सकते हैं, लेकिन चेन ड्राइव के अंदर, सिंक्रोनस ड्राइव के अंदर, वी बेल्ट ड्राइव के अंदर हम 1:4, 1:5, 1:6 इससे ज़्यादा अमूमन नहीं जाते. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइज डिफरेंशियल होता है बिटवीन द स्प्रॉकेट्स वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू हैव
more of a speed reduction using the same mechanism, कोई और मजबूरी है जिसकी वजह से ऐसे करना है. फॉर एग्जांपल एक मजबूरी ये हो सकती है कि आपके पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसके ऊपर आपने पावर को ट्रांसमिट करना है, तो गियर रिडक्शंस आर नॉट फीजिबल इन दैट केस. उसके अंदर आप एक खास रेशो में रिड्यूस करके पावर को पहले डिस्टेंस को ब्रिज करते हो यूजिंग आइदर चेन ड्राइव्स और बेल्ट ड्राइव्स, और उसके बाद आगे आप गियर रिडक्शन को जो सा होगा अटैच कर सकते हो वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एप्लीकेशन. तो वहाँ पे यू कैन यूज लाइक चेन ड्राइव्स और गियर ड्राइव्स in series to one another. So for a given sprocket, a given number of teeth, the capacity increases with the increasing speed up to the point, but then it decreases. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार मैं अपनी sprocket size जो सा है वो ज्यादा करता रहूं तो मैं पावर जो सा होगा वो जो डिलीवरी कैपेसिटी है ज्यादा करता जाऊंगा साथ साथ. इट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन इट गोज डाउन. उसकी वजह ये है कि fatigue due to the tension in the chain governs at low to moderate speed, but the impact on the sprocket governs at higher speed. Finally, the ratings that are given are for single strand roller chains, but if you are using multiple strands, the power doesn't actually multiply according to the number of strands. ऐसे नहीं कि आप दो यूज कर लोगे chains parallel के अंदर तो आप double power transmit कर सकते हो. There is a factor to it that is given by American Chain Association as 2 strands can be used to transmit 1.7 times the power of a single strand. 3 strands have a factor of 2.5, 4 strands have a factor of 3.3. तो ये डायरेक्टली स्केल नहीं करता, इसकी जो स्केलिंग है वो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशियल है. Finally, you can also choose a service factor of more than one based on the application from table 7-16. इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे. अब कुछ जनरल डिजाइन गाइडलाइंस हैं या स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे. इन गाइडलाइंस को जो सा होगा वो जहन में रखते हुए हमने अपने साइज को चूज करना है या चेन के लिंक्स को जो सा होगा वो हमने सेलेक्ट करना है. So the first one is that the minimum number of teeth in a sprocket should be 17 or more than 17 unless the drive is operating at a very low speed. तो कम से कम teeth जो से हैं वो एक sprocket के ऊपर 17 या इससे ज्यादा ही होने चाहिए unless you are operating at very low speeds. उसकी वजह ये है कि at higher speed जब chain bend करती है around the corners, the sprockets with less than 17 teeth are too small and that can carry unnecessary force on the chain, जिसकी वजह से failure जो से उसके chances ज़्यादा होते हैं. तो for most of the examples आपने ये assume करना है कि the minimum number of teeth on a sprocket on a smaller one it should be more than 17. The maximum speed ratio should be 7. ये भी जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि 7 या इससे ज़्यादा जो सी है वो आपने नहीं रखनी. तो maximum speed ratio जब आप select करोगे on a single chain drive mechanism it should be 7 or less than 7. इससे नीचे भी आप रख सकते हो. The center distance between the sprockets should be 30 to 50 pitches या 30 to 50 times the pitch of a chain. There are some application in which you can choose a larger distance, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि स्पीड रेशियो जो सी होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते आप वहाँ पे. तो सर ये स्पीड रेशियो को मतलब सेट कैसे करेंगे? स्पीड रेशियो क्या चीज़? स्पीड रेशियो को सेट कैसे करेंगे, मतलब 7 से कम? नहीं, वो हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपकी एप्लीकेशन डिमांड कर रही है कि आपने 1000 आरपीएम से 500 पे लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली स्पीड रेशियो 2 की है 1000 by 500. तो ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट होता है. लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि जब आप चेन ड्राइव डिजाइन कर रहे हो तो आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन के लिए चेन ड्राइव को चूज ना करें जहाँ पे स्पीड रेशियो जो सी है वो 7 से ज्यादा आ रही है. अगर 7 से ज्यादा आ रही है, यूज 2 चेन ड्राइव्स इन सीरीज
या यू कैन यूज मल्टीपल ड्राइव्स, या एक वी बेल्ट और एक चेन ड्राइव को सीरीज में यूज कर लो, या एक गियर ड्राइव को यूज कर लो, व्हाटएवर, लेकिन डोंट यूज अ सिंगल चेन ड्राइव that has a maximum speed ratio of a 7. ठीक है सर। अच्छा, the larger sprocket should have normally no more than 120 teeth. तो जो upper limit है teeth की on a sprocket वो 120 है, जो lower limit है वो 17 है। कुछ इससे मिलती जुलती लिमिट्स हम देखेंगे गियर ड्राइव्स के अंदर भी आएंगी, तो इनको जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। The preferred arrangement for a chain drive is to install it with the center line of the sprockets horizontal. Horizontal installation जो सी है वो preferable है, with the tight side on the top. The chain length must be an integral number of the pitch. Obviously क्योंकि आधी pitch का तो concept नहीं है कोई भी, एक pitch length होगी क्योंकि that has to run over a sprocket. So it must be an integral number of pitch, and an even number of pitches is recommended. तो जब हम अपना डिजाइन करेंगे तो हम जो अमेरिकन चेन एसोसिएशन है that recommends choosing an even number of pitches जब आप उसको लेंथ को सिलेक्ट कर रहे होगे। जिस तरह से हमने जो पेरीमीटर लेंथ का और सेंटर डिस्टेंस के कुछ फार्मूलाज देखे थे फॉर बेल्ट ड्राइव्स, वही हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर चेन ड्राइव्स, but with the difference that the chain length is given in pitches. So LC is the chain total length of the chain in number of pitches. So this is 2 times the center distance, CD is center distance. और यहाँ पे हमारे पास जो कुछ और टर्म्स आ रही हैं इसको हम देखेंगे, N2 और N1 यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे। Basically this would be the number of teeth on the sprocket for the larger one and the smaller one. N2 is the larger sprocket and N1 is the number of teeth on the smaller sprocket. Then there's also an inverse thing कि आपको chain length पता हो in number of pitches once again, और आप उस center distance निकालना चाहो तो उसके लिए भी हमारे पास ये given है। If you want to find the pitch diameter of a sprocket with a certain number of teeth, and the pitch diameter is given as P over sine of 180 divided by N, जहाँ पे P जो है this is a pitch of the chain जो आप select करोगे, इसकी मदद से pitch diameter जो है वो आराम से निकाल सकते हो आप। तो if you know the pitch diameter and you have selected the number of teeth on the sprocket, तो आप उसकी मदद से pitch diameter जो है वो निकाल सकते हो। So the minimum sprocket diameter and the minimum number of teeth on the sprocket are often limited by the size of the shaft on which it is mounted. तो इसके अंदर एक और भी जो सा होगा वो constraint end में आ जाता है, वो ये होगा कि जब आपने एक sprocket select करना है उसके ऊपर minimum number of teeth select करने हैं, कोई एक pitch size आप पहले choose कर चुके हो, तो उसके अंदर number of teeth जो से होंगे वो एक और चीज पे भी depend कर रहे हैं कि the size of the shaft on which the sprocket has to be mounted. फिर जिस तरह से हमने एंगल ऑफ रैप जो सा था ढूंढा था फॉर बेल्ट ड्राइव्स, the similar concept is available in chain drives. The smaller sprocket, the angle of wrap on the smaller sprocket should be more than 120 degrees, and it can be found as 180 minus 2 phi जो हम करते थे उस वक्त, ये वही फॉर्मूला है 180 minus 2 times sine inverse pitch diameter of the larger sprocket minus pitch diameter of the smaller one divided by 2 times the center distance. And similarly, the larger sprocket can be the arc length on the larger sprocket can also be determined. Table 7-17 gives us the service factors for chain drives. यहाँ पे भी उसी तरह से आपने service factor choose करना है. There is the first thing that you need to know is the type of the driver, the input source. यहाँ से आपके पास 3 options given है. There is a hydraulic drive, electric motor or turbine, and an internal combustion engine with mechanical drive. फिर आपने load type को देखना है. Is it a smooth load,
जिसके अंदर एग्जांपल्स गिवन हैं, एजिटेटर्स हैं, फैंस हैं, जनरेटर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं। इसका मतलब ये है कि आराम से एक 0 आरपीएम से अपनी फाइनल आरपीएम को अचीव करते हैं, उसके बाद वहां से आराम से जो सा होगा वो बंद होते हैं। नॉर्मली ब्रेकिंग अप्लाई नहीं की जाती। Then there are moderate shock loads, bucket elevators, machine tools, cranes, heavy conveyors and so on. And heavy shock loads जिसके अंदर punches हो गए, presses हो गए, hammer mills हो गई and so on. So you have to choose a service factor appropriately based on the type of driver and the load type. और इसके अंदर जो सा होगा, एक हमने पहले ही assumption already अपनी कर ली हुई है कि जो इसकी service life है chain की, that has been based on 15,000 life hours. तो उसके अंदर जो सा होगा यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कितने आवर्स अ डे के ऊपर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने दो चीजों की बेस पे सिलेक्ट करना है सर्विस फैक्टर। अब एक इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज है चेन ड्राइव्स के अंदर जो हमने बेल्ट ड्राइव्स के अंदर नहीं देखी थी, दैट इज लुब्रिकेशन। चेन ड्राइव एज अ मैकेनिज्म जो कि मेटालिक पार्ट्स के ऊपर सारा बना हुआ है, एंड टू function smoothly it requires lubrication, जो कि मिसिंग था बेल्ट ड्राइव्स के अंदर, जो कि रबर की बनी हुई है, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई, doesn't require lubrication. It runs on either the friction between the sheaves or the teeth and sprocket combination in case of the synchronous drive. But lubrication is an essential part of a chain drive. It has to be selected based on the application, and the designer must also define the lubricant properties and method of lubrication. The properties के अंदर basically आप क्या देखते हो, उसकी viscosity देखते हो, उसका flow देखते हो किस तरह का हो सकता है, so that it allows for smooth relative motion. जब अगर आप में से कोई बाइक की सर्विस वगैरह जब आप कराने, सर्विस तो नहीं, ट्यूनिंग जब कराने जाते हो, तो वो वहाँ पे वो चेन को टाइट भी करते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कोई ना कोई ग्रीस या वैक्स या कोई ना कोई इस तरह का लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, सो दैट द सिस्टम इज रनिंग मोर स्मूथली। तो पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स सिमिलर टू इंजन ऑयल्स, they are recommended for lubrication. And table 7-18 जो कि यहाँ पे है, it gives some recommendation lubricants for the chain drives based on the ambient temperature. तो एम्बिएंट टेम्परेचर जिसके अंदर आपने अपने ड्राइव को ऑपरेट करना है, वहाँ पे उसके मुताबिक जो सा वो कुछ लुब्रिकेशन जो मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल SAE 20, 30, 40, 50। ये इसमें फ़र्क क्या है, जो पार्टिकल साइज होता है लुब्रिकेंट का वो थोड़ा सा फ़र्क है। सो SAE 20 वुड हैव स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इसकी विस्कोसिटी जो सी होती है वो नॉर्मली कम होती है। तो आप ये देख रहे हो कि दिस वन इज यूज्ड फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स, -7 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपनी विस्कोसिटी को जो सा होता है वो, क्योंकि वैसे ही इसकी कम होती है हायर टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो लोअर टेम्परेचर पे जाके ये अच्छी लुब्रिकेशन दे सकता है। बट इफ यू आर रनिंग द चेन ड्राइव एट हायर टेम्परेचर्स, फॉर एग्जांपल कोई फर्नेस के साथ किसी तरह का उसका कनेक्शन है या सो ऑन, so you'd be using a heavier lubricant, SAE 50, SAE 40, based on the application. फिर 3 recommended methods हैं lubrication के। Type A lubrication, Type B lubrication, and Type C lubrication. Type A is a manual or a drip lubrication, जिसके अंदर लुब्रिकेशन मैनुअली अप्लाई की जाती है, आइदर बाय एन ऑपरेटर या किसी भी तरह से ब्रश के थ्रू आप उसके ऊपर मैनुअली लुब्रिकेशन जो से होगी वो अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ ऑपरेशन, मे बी 8 hours, 4 hours, 10 hours ऑफ ऑपरेशन। या ड्रिप लुब्रिकेशन होती है वेयर द लुब्रिकेंट इज ड्रिप्ड कॉन्स्टेंटली ड्रॉप बाय ड्रॉप onto the chain. Type B is a bath type or a disc type lubrication, where the chain cover provides the sump of oil. एक chain का cover होता है, casing होती है जिसके अंदर oil जो सा होता है, oil bath available होता है, वो उसमें से dip करती हुई chain जा रही होती है। तो ये basically type B lubrication है। Type C lubrication is
एन ऑयल स्ट्रीम लुब्रिकेशन, जहाँ पे एक ऑयल पंप लगा होता है, वो एक स्प्रे की फॉर्म के अंदर ऑयल जो सा होता है वो उसके ऊपर बड़ा भाई लुब्रिकेशन चल रही है। तेरा माइक ऑन होएगा, कट दे निशाना का मतलब तेरी आवाज नहीं जा रही, ठीक है? अब आ गई आवाज? हाँ चिल्ला रहा है। So the A part of the diagram shows the drip feed lubrication, which is type A lubrication. एक ड्रिप मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि ऑयल को एक एक कतरा करके गिरा रहा है चेन ड्राइव्स के ऊपर एट डिफरेंट पार्ट्स। तो एक 3 स्ट्रैंड यहाँ पे चेन की रिप्रेजेंटेशन है और उसके ऊपर ड्रिप लुब्रिकेशन जो सी है वो आप फिगर ए के अंदर देख सकते हैं। जो इसका पार्ट बी है उसके अंदर दिस शोज अ बाथ लुब्रिकेशन। So there is a casing on the chain that has an oil bath in it, and the chain basically dips into the oil bath at one end. इसी की एक और फॉर्म होती है which is the disc or slinger type lubrication. इसके अंदर भी बेसिकली काम वही हो रहा है कि there is an oil bath on which an oil disc is rotating, जिसके ऊपर जो सा वो lubrication साथ में हो रही है. And finally there is a stream type lubrication which is type C lubrication. जिसके अंदर एक ऑयल पंप लगा होता है which sprays oil on top of the chain. तो ये 3 मेजर तरह की टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी लुब्रिकेशन में से आपने कोई एक लुब्रिकेशन टाइप भी मेंशन करनी है जब आप चेन को सिलेक्ट कर रहे होगे। चलिए लेट्स डू एन एग्जांपल प्रॉब्लम सो दैट द प्रोसीजर इज क्लियर कि किस तरह से चेन को सिलेक्ट करना है, on what basis are you going to design a chain drive. So the application is a conveyor belt drive. There is a driving mechanism जो कि एक engine है. It drives a conveyor belt. So it's a heavily loaded conveyor for use in fields for a large commercial produce farm. तो ऐसी जगह पे कन्वेयर यूज हो रही है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, सो एन इंजन इज अटैच्ड विद द कन्वेयर जो कि एक चेन ड्राइव के थ्रू उस कन्वेयर को रन कर रहा है। The conveyor is run by a gasoline engine that delivers 15 horsepower. तो इनपुट पावर हमें पता लग गई at a speed of 900 rpm. दो चीजें पता लग गई। The conveyor pulley speed is to be 230 to 240 rpm. The output speed की रेंज जो सी है ये हमें पता लगी 230 से 240 rpm आउटपुट पे चाहिए। तो इस सिस्टम के लिए हमने अपना चेन ड्राइव को जो सा वो डिजाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस फैक्टर चूज करेंगे बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम टेबल 7-17. इनपुट पावर इज 15 हॉर्स पावर, वहां से हम डिजाइन हॉर्स पावर जो सी होगी वो चूज कर लेंगे। तो सर्विस फैक्टर को देख लेते हैं पहले। एप्लीकेशन देख लीजिए, इनपुट इज कमिंग फ्रॉम एन इंजन and the application is a heavily loaded conveyor for use in the fields. चलिए इनकी सर्विस फैक्टर बताएं, इसके अंदर से क्या होगा। टेबल 7-17 आपके सामने है, इसमें से सर्विस फैक्टर निकालें, क्या बन सकता है। सर 1.3 होगा। 1.3 तो नहीं हो सकता जी। इलेक्ट्रिक मोटर या टरबाइन तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो अवेलेबल ड्राइव है वो इंजन ड्राइव। आपका सर्विस फैक्टर बेसिकली 1.4 बनेगा। The input is coming from an internal combustion engine and the application is a heavy conveyor. तो सर्विस फैक्टर 1.4 आप चूज करोगे।
और आपकी डिजाइन पावर जो सी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सर्विस फैक्टर, वो 15 टाइम्स 1.4 ये आपकी डिजाइन पावर जो सी होगी आप यूज करोगे। तो यू आर डिजाइनिंग अ सिस्टम फॉर around 21 horsepower. Step number 2 is to compute the desired ratio, speed ratio. So the input is at 900 rpm, output is 230 to 240. ये दोनों के दरमियान में जो range है, this is acceptable. So we can choose, you could either design your system to be compatible at the lower limit or the higher limit, या इसके दरमियान में कुछ भी आप choose कर सकते हैं। The speed ratio or the velocity ratio can be used, जो कि हम कर सकते हैं वो होगा output speed, output RPM, sorry input, $900 और दूसरे एंड के ऊपर हम 235 चूज कर सकते हैं, जो कि मिड पॉइंट है अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। But if, for example, someone chooses to design the system at 238 RPM, वो भी वैलिड होगा। आपके आगे आने वाले आंसर्स फर्क हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, लेकिन वो सोल्यूशन ठीक होगा, बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं है। 232 के ऊपर कोई डिजाइन कर लेता है, वेलोसिटी रेशियो को इस तरह से चूज करता है कि आउटपुट आरपीएम 232 आ जाती है, तो वो भी वैलिड है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी ठीक होगा। The velocity ratio comes to be 3.82. Now we need to refer to the power capacity tables for chain size number 40, chain size number 80 and chain size number 100, नहीं 40, 60 and 80, इन तीन साइजेस के लिए हमारे पास बुक में टेबल गिवन है। 40 का मतलब होगा 0.25 इंच पिच, 60 का मतलब होगा 0.7 सॉरी पॉइंट गलत हो गया, 40 का मतलब होगा 0.5 इंचेस पिच, 60 का मतलब होगा 0.75 इंच पिच, 80 का मतलब होगा 1 इंच पिच। तो इन तीन साइजेस के लिए टेबल जो से वो बुक पे गिवन है। बाकी जो डाटा होगा फॉर अदर साइजेस वो मैं आपके साथ अभी जो सा होगा आपको एक एक्सटर्नल लिंक के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि वो आपके पास कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम इस तरह से करते हैं कि इन्हीं टेबल्स में से चूज करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट टेबल 7-14 टू 7-16, इन तीन में से हमने चूज करना है। जहन में आपने क्या रखना है कि वी आर डिजाइनिंग द सिस्टम फॉर वेलोसिटी रेशियो ऑफ 3.82 and a design power of 21 horsepower. So the tables, I'll choose the book for that. उसको मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ। सर ये 40, 60, 80 का क्या मतलब है? पावर? नहीं जी, ये पावर नहीं है, चेन साइजेस हैं, चेन नंबर्स हैं। इन तीन चेन नंबर्स के लिए बुक में डाटा गिवन है। जो टेबल 7-14, 15 और 16 है, इसमें इन तीन चेन नंबर्स का डाटा गिवन है पावर रेटिंग के लिए। नंबर 40 का मतलब है कि पिच लेंथ जो सी है, पिच डिस्टेंस चेन का वो 0.5 इंचेस है। नंबर 60 का मतलब है कि जो पिच डिस्टेंस है चेन का वो है 0.75 इंचेस। और नंबर 80 जो सी है दैट हैज अ पिच डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। सर ये पिच डिस्टेंस मतलब टू कंसेक्यूटिव एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। दो कंसेक्यूटिव जो पॉइंट्स हैं ऑन अ रोलर चेन, इसके बीच में डिफरेंस है। ओके सर ये डिजाइन पावर और आउटपुट पावर में क्या डिफरेंस है? डिजाइन पावर और आउटपुट पावर में क्या डिफरेंस है? एक तो वो पावर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट सोर्स, जो कि प्राइम मूवर होता है, इंजन हो सकता है, मोटर हो सकता है, हाइड्रोलिक मोटर हो सकती है, व्हाटएवर। एक हमारे पास वो पावर है जिसके लिए मैंने अपनी चेन को सिलेक्ट करना है या अपने सिस्टम को डिजाइन करना है, उसको हम डिजाइन पावर कह रहे हैं। उसके अंदर एडिशनल क्या चीज ऐड हुई है? उसके अंदर एडिशनल एक फैक्टर ऐड हुआ हुआ, सर्विस फैक्टर,
जो कि किस चीज को जहन में रखते हुए हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपने किस तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। एक तो आपकी इनपुट पावर होगी, एक आपकी एप्लीकेशन बेस के ऊपर जो कि लोडिंग को डिफाइन करता है कि मॉडरेट लोडिंग है, लाइट लोडिंग है या शॉक लोडिंग है। उसकी बुनियाद के ऊपर एक और फैक्टर ऐड हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर, जिसको सर्विस फैक्टर कहा जाता है। और सर्विस फैक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट पावर इज द डिजाइन पावर, जिसके लिए हमने अपने लिंक्स को सिलेक्ट करना है। टेबल 7-14 जो सा है, टेबल 7-14, 15 और 16, ये 3 टेबल्स हैं जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। हॉर्स पावर रेटिंग्स फॉर अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ रोलर चेन नंबर 40, रोलर चेन नंबर 60 एंड रोलर चेन नंबर 80। रोलर चेन नंबर जो 40 है, इसकी 0.5 इंच पिच है। और इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट, जो कि एक साइड पे आप देख रहे हो 11, 12, 13 इस तरह से बढ़ रहे हैं, and the rotational speed of the smaller sprocket in revolutions per minute. There is a power rating given for which it can be used. तो हमारी एप्लीकेशन के लिए क्या था, 900 आरपीएम थी, तो हम ये 900 वाला कॉलम देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक और चीज शुरू में सोची थी कि 17 से ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए मिनिमम ऑन अ स्प्रॉकेट, ऑन अ स्मॉलर स्प्रॉकेट, इफ द आरपीएम इज मोर देन 100। तो हम इससे नीचे नीचे देखेंगे, 17 और 17 से ज्यादा को जो सा होगा वो देखेंगे। सो 900 इनपुट आरपीएम फॉर अ चेन नंबर 40, 17 टीथ, कैन आई यूज इट? 6.57 एचपी के लिए यूज किया जा सकता है इसको, अप टू 6.757 हॉर्स पावर। तो ये फिजिबल नहीं है मेरे लिए। मेरी डिजाइन पावर थी 21 एचपी। मैंने ऐसी कॉम्बिनेशन देखनी है नंबर ऑफ टीथ की और आरपीएम के साथ उसको, जिसको मैं 21 एचपी तक यूज कर सकूं। तो 900 आरपीएम के हिसाब से मैं अगर चेन नंबर 40 को देखूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग जो मेरे पास है फॉर 45 टीथ स्प्रॉकेट, वो 17.39 है। तो चेन नंबर 40 मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक और इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर गिवन है, वो है लुब्रिकेशन टाइप। सो फॉर लोअर स्पीड्स, टाइप ए लुब्रिकेशन रिकमेंडेड है। फॉर हायर स्पीड्स, टाइप बी लुब्रिकेशन रिकमेंडेड है। एंड फॉर ग्रेटर स्पीड्स एंड पावर, जो कि इस एक लाइन से जो सा होगा सेपरेट हो रही है यहाँ पे इस टेबल के अंदर, टाइप सी लुब्रिकेशन रिकमेंडेड है। लेकिन हमने ये डिटरमिन किया कि चेन नंबर 40 कैन नॉट बी यूज अगर आपकी इनपुट आरपीएम 900 है और आपको डिजाइन पावर 21 एचपी है, तो इसके अंदर हमारे पास रेंज में नहीं आ रहा। लेट्स मूव ऑन टू चेन नंबर 60। चेन नंबर 60 हैज अ पिच ऑफ 0.75 इंचेस। इसके अंदर देखते हैं कि 900 आरपीएम के लिहाज से कहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या जिसके अंदर जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 900 यहाँ पे देख रहे हो आपके अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, 800 और 1000 तो है, इसके दरमियान में चूज कर लेते हैं। तो 17 टीथ से स्टार्ट करेंगे। सर 17 से ही क्यों कर रहे हैं, काइंडली इसको दोबारा बता दें। 17 बेसिकली वाज द नंबर जो कि हमने शुरू में एक डिजाइन गाइडलाइंस के अंदर देखा था कि द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट शुड बी 17, इससे कम ना हो। उसकी वजह ये होती है कि फॉर लार्जर पिचेस स्पेशली, जो स्प्रॉकेट साइज है वो काफी छोटा होता जाता है अगर नंबर ऑफ टीथ जो है वो कम होते जाते हैं। नंबर ऑफ टीथ कम होने से जब स्प्रॉकेट साइज छोटा होता है तो दो लिमिटेशंस आती हैं। एक तो शाफ्ट जिसके ऊपर उसको माउंट करना है, आपको उसके मुताबिक अपना स्प्रॉकेट का साइज चूज करना पड़ता है, सो दैट आल्सो डिफाइंस द नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रॉकेट। और सेकेंडली जो उससे बड़ी लिमिटेशन है वो होती है कि द चेन दैट बेंड्स अराउंड द स्प्रॉकेट, वो जो बेंडिंग हो रही है उसकी वजह से जो एडिशनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप नंबर ऑफ टीथ को कम करोगे। नंबर ऑफ टीथ कम करने का मतलब ये है कि आप चेन जो स्प्रॉकेट का साइज है वो छोटा करते जा रहे हो। So for a given pitch, for a safe design,
हमने ये एज्यूम करना है कि अनलेस द आरपीएम ऑफ द डिजाइन इज लेस देन 100, 100 आरपीएम से कम पे डिजाइन कर रहे हो आप, अगर 100 आरपीएम से ज्यादा पे करोगे तो 17 मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है जो कि आपने स्प्रॉकेट के चूज करने हैं, और 120 मैक्सिमम लिमिट थी। 120 से ज्यादा भी नहीं चूज करने नंबर ऑफ टीथ, और 17 से कम भी नहीं चूज करने। सर हाँ जी। सर पिच डिस्टेंस इंक्रीज करने से स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है? पिच डिस्टेंस यानी कि चेन नंबर चेंज करने से, चेन नंबर चेंज करने का स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, पिच डिस्टेंस मतलब दो उसके जो क्या कहते हैं रोलर है उनके दरमियान अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दें। जी वो चेन नंबर से ही डिफाइन होता है, जो पिच डिस्टेंस है वो चेन नंबर से ही डिफाइन किया जाता है। तो पिच डिस्टेंस अगर आप चेंज करोगे उससे आरपीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पावर आरपीएम के इंक्रीज ऊपर होगी। फर्क पड़ेगा, आरपीएम पे फर्क पड़ेगा आपकी स्प्रॉकेट साइजेस से, नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच स्प्रॉकेट। ठीक है सर। हाँ चेन की लीनियर स्पीड पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। यहाँ सेंटर डिस्टेंस के ऊपर हो सकता है मे बी थोड़ा बहुत इशू इसके अंदर से आ जाए। एनीवेज फॉर चेन नंबर 60 एंड सर जब पिच 17 साइज टीथ, हम ज्यादा कर रहे हैं सर, उसकी मिसअलाइनमेंट नहीं हो सकती है स्प्रॉकेट के टीथ के साथ अगर हम को कम ज्यादा कर रहे हैं पिच नंबर को? उसी हिसाब से स्प्रॉकेट की जो सी होगी वो स्पेसिंग होती है। सर टीथ का मतलब ये है कि हम उसका डाया भी बाद में चेंज कर सकते हैं, टीथ आर फिक्स्ड और हम डाया चेंज कर सकते हैं टू नहीं ऐसा एडजस्ट नहीं हो विद द। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप नंबर ऑफ टीथ चूज कर रहे हो फॉर अ गिवन पिच लेंथ, तो आप बेसिकली पिच डायमीटर भी साथ ही चूज कर रहे हो उसके, वो फिक्स्ड होगा। वो हमने एक फार्मूला देखा था, पिच डायमीटर वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पिच डायमीटर वाज बेस्ड ऑन द पिच लेंथ एंड द नंबर ऑफ टीथ। तो वो था आई थिंक p डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, वो अभी हम दोबारा से उसको विजिट कर लेते हैं, साइन ऑफ 180 बाय द नंबर ऑफ टीथ, इस तरह से कुछ ओके बन रहा था। लेकिन ओके सर। जब आप बेसिकली पिच चूज कर रहे हो, पिच लेंथ चूज कर रहे हो और नंबर ऑफ टीथ चूज कर रहे हो, तो आप बेसिकली स्प्रॉकेट का डाया चूज कर रहे हो, क्योंकि ये ओके तीनों सर। चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड। तो फॉर चेन नंबर 60, 900 आरपीएम, 17 teeth, the power rating, the maximum power rating that you can use becomes 21.96, about 22 horsepower। तो हम ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से चेन नंबर 60, 18 टीथ वाली, वो भी यूज कर सकते हो आप। चेन नंबर 60, 17 ऑनवर्ड्स, कोई भी नंबर ऑफ टीथ आप चूज कर लो ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट, आप ये कॉम्बिनेशन सारे के सारे यूज कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एग्जांपल जो अभी हम देख रहे थे। सर 900 के लिए हमें इन टू वैल्यूज की एवरेज नहीं लेनी पड़ेगी? वही किया जी मैंने। 17 के अंदर मैंने देखा 800 और 1000 जो लिमिट्स हैं इसके दरमियान में मैंने इनकी एवरेज वैल्यू चूज की है, वो 21.96 बन रही है, यूजेबल है। 21 एचपी के लिए हम डिजाइन कर रहे थे, 21.96 बन रही है फॉर 900 आरपीएम। ओके सर। इसी तरह से चेन नंबर 80 के लिए 900 आरपीएम के ऊपर आप देखो, 17 टीथ से स्टार्ट हो जाओ, 44 एचपी, 48 एचपी, 52 एचपी एंड सो ऑन, आप ये सारे साइजेस इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। अब दो कंस्ट्रेंट्स हैं, अब आपने ये देखना है कि अब आपका सेंटर डिस्टेंस क्या था या साइज आपने कितना रखना है अपने चेन ड्राइव का। नंबर 2, आपने कॉस्ट कितनी रखनी है अपनी चेन ड्राइव की। ये दोनों चीजें किस तरह से बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टीथ बढ़ाते जाओगे स्मॉलर स्प्रॉकेट के ऊपर, यानी कि आप ये काम कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को बना सकते हो यूजिंग 17 टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट एट 900 आरपीएम यूजिंग चेन नंबर 60। ये आपके पास जो है वो सबसे लोएस्ट एंड है। इसके बाद आप 18 टीथ वाली स्प्रॉकेट भी यूज कर सकते हो, 20 वाली भी यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा वाली कोई भी यूज कर सकते हो।
या आप चेन नंबर ही चेंज कर लो, चेन नंबर 80 यूज कर लो, चेन नंबर 100 यूज कर लो, उसके हिसाब से अपना सिस्टम जो है डिजाइन कर लो। फर्क कहाँ पे आता जाएगा, चेन नंबर 100 महंगी होगी चेन नंबर 60 से। तो फॉर अ 17 teeth arrangement for chain number 100 it would cost you more than a 17 teeth arrangement on chain number 60। इन दोनों के अंदर कॉस्ट का फर्क आ जाएगा क्योंकि स्प्रॉकेट साइज जो सा होगा वो चेंज हो जाएगा। चेन नंबर 100 का 17 टीथ का स्प्रॉकेट साइज बड़ा होगा, उसमें ज्यादा मटेरियल लगा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा महंगा मिलेगा आपको। तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट हम ये डिसाइड करते हैं कि 17 टीथ स्प्रॉकेट चेन नंबर 60 इसको चूज कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। ऑल्दो एज फार एज द डिजाइन इज कंसर्न, जहां पे आपके पास कॉस्ट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। आप अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस पूरी एग्जांपल के अंदर कहीं पे भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र नहीं था, आप एग्जाम के अंदर टेबल 7-15 में से उठाते हो 30 टीथ ऑन द स्प्रॉकेट और इसके मुताबिक डिजाइन कर देते हो पूरी एग्जाम्पल को, तो आंसर आपका ठीक है। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर ठीक आंसर्स हैं जो आप चूज कर सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि लेट्स चूज नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू 17 और चेन नंबर 60 जो सा वो चूज कर रहे हैं। लुब्रिकेशन कौन सी यहाँ पे यूज होगी, टाइप बी लुब्रिकेशन जो सी है वो रिकमेंडेड है यहाँ पे। तो ठीक हो गया, स्टेप 3 हमने कर लिया। स्टेप 3 के अंदर क्या चूज किया, चेन नंबर 60, उसके साथ हमें पता लगा उसकी पिच जो सी है 3/4 इंचेस 0.75, नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट 17 और टाइप बी लुब्रिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई टेबल 7-15 से इस केस के अंदर। नाउ यू नीड टू कंप्यूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीथ ऑन द लार्जर स्प्रॉकेट, जो कि बहुत आसान है। 17 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी रेशियो वो बन जाता है 65.11। तो इसके क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो 65 है। 65 टीथ ऑन द लार्जेस्ट स्प्रॉकेट ही हमने चूज कर लिया। अब क्योंकि जो एक्चुअल हमारे पास स्पीड बन रही थी 235 आरपीएम की, दैट वाज विद द एग्जैक्ट फिगर ऑफ 3.83 वेलोसिटी रेशियो, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा सा साइज को मॉडिफाई किया 65.11 doesn't make any sense in terms of number of teeth, तो 65 teeth का sprocket हमने choose किया। तो you need to compute the actual velocity ratio on the number of teeth based on the number of teeth now। तो आप ये कह सकते हो कि 65 डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो एक्चुअल वेलोसिटी रेशियो है वो 3.823 बन जाएगी, and then you divide 900 by 3.823। सर इसके लिए बेस्ट नहीं है कि हम 66 को सिलेक्ट कर ले? 66 भी चूज कर सकते हो, वो भी ठीक है। अगर आप 65 को चूज करोगे यू गेट अराउंड 235.3 आरपीएम। ठीक हो गया। अगर आप 65 नहीं चूज करते, आप 66 चूज कर लेते हो, या आप में से कोई जो है वो 67 से इसको सॉल्व कर लेता है, तब भी वैलिड है, as long as the actual output RPM is within 230 to 240 RPM। आप सारों का आंसर ठीक होगा। कैसे, 66 को भी हम देख लेते हैं। $66 और 17 के साथ जो आपके पास रेशियो बन रही है वो 3.88 बन रही है वेलोसिटी रेशियो। So 900 divided by 3.88, ये 231.9 बन रही है, तो अराउंड 232 आरपीएम बन रही है। ये भी हमारी रेंज के अंदर है, तो ये भी ठीक होगा। तो अगर आप 17 और 66 यूज करते हो ये भी ठीक है, लेकिन आई थिंक 17 और 68 पे जाओगे फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जाके आपका जो डिजायर्ड आरपीएम है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो एक रेंज है जिसके अंदर आप इसको जो है वो डिजाइन कर सकते हो।
So knowing the number of teeth on each sprocket, now you can, and also you know the pitch of the chain, अब आप choose कर सकते हो या define कर सकते हो pitch diameters जो कि already आप choose कर चुके हो. Basically when you choose the number of teeth and the pitch, you are already chosen, you have already chosen the pitch diameters, आप उनको compute कर सकते हो. The pitch diameter for the smaller one, P, which is the pitch of the chain divided by sine of 180 by N1, which is the number of teeth on the sprocket. This becomes 4.082 inches, and the larger pitch diameter is 15.524 inches. तो आपने एक सेंटर डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है. अगर आपको कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है एग्जांपल के अंदर, ये नहीं बताया हुआ कि इतने सेंटर डिस्टेंस पे डिजाइन करो, तो आपने खुद से चूज करना है. खुद से चूज करने के लिए जो हमारे पास जनरल गाइडलाइंस थी उसमें ये लिखा हुआ था कि 30 to 50 पिच लेंथ के ऊपर आप सेंटर डिस्टेंस चूज कर सकते हो. 30 पिच लेंथ से लेके 50 पिच लेंथ तक आप सेंटर डिस्टेंस जो है वो चूज कर सकते हो. तो इसके वैल्यू के दरमियान में से कोई 30 से लेके आगे सॉल्व कर देता है वैलिड है, 50 से लेके कर देता है वैलिड है, 45 से लेके कर देता है, 40 से लेके कर लेता है. सो यू कैन सी देयर आर लाइक लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस on which the answer or the solution can be valid. तो बुक के अंदर उसने क्या किया हुआ है, in this particular example he has done it using 40 pitches, जो कि this is the middle of the recommended range. तो 40 pitches के मुताबिक अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो into inches, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे with the pitch length. तो 40 into 0.75, ये 30 इंचेस का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो डिस्टेंस हमने अभी स्पेसिफाई किया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पिचेस. तो 40 पिचेस डिस्टेंस है और 30 इंचेस बनेगा ये, क्योंकि 0.75 इंच एक पिच का जो लेंथ है वो इतना बनेगा. शुरू में हमने दो फार्मूलाज देखे थे. यू कैन कंप्यूट द रिक्वायर्ड चेन लेंथ बेस्ड ऑन इट, व्हिच बिकम्स according to the center distance of 40 pitches, which comes out to be 122.5 pitches. But once again, there is no concept of half a pitch in a chain. दूसरी बात ये थी कि हमने ये कहा था कि don't choose odd number of pitches in a chain. Try to choose even number of pitches. तो हम इसको चूज कर लेंगे, 122 कर सकता हूँ इसे, या 124 कर सकता हूँ. 122 या 24 करने से फर्क सिर्फ किस चीज में आएगा, सेंटर डिस्टेंस के अंदर फर्क आ जाएगा थोड़ा सा. तो अगर आप इसको 122 चूज करते हो तो ये एक सेंटर डिस्टेंस का फार्मूला है. वंस अगेन इसको, ये आपके पास बुक में अवेलेबल होगा, इसको चूज करते हुए आप इसको कंप्यूट कर सकते हो सेंटर डिस्टेंस को, व्हिच कम्स आउट टू बी. सर अभी आपने वो हाफ वाला बताया कि चेन को हाफ करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सर इससे क्या मतलब है? चेन के अंदर डिस्क्रीट लिंक्स है ना, एक लिंक हो सकता है, उसमें दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक पिच लेंथ हो सकती है, दो पिच लेंथ, तीन पिच लेंथ, जिसके ऊपर उसे स्प्रॉकेट पर रन करना है. आधी पिच लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है. आधी पिच लेंथ का मतलब आधा लिंक होगा, आधा लिंक तो जाम कर देगा चेन में, तो चल ही नहीं सकता. चेन के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रीट नंबर के अंदर होते हैं. एक लिंक होगा, दो लिंक, 10 लिंक, 15 लिंक, 20 लिंक एंड सो ऑन. आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 20.5 लिंक, वो ये कोई सेंस नहीं बनती है इसकी. सर और से क्या फर्क पड़ सकता है अगर हम 123 ले रहे हैं? ले सकते हैं. आई थिंक इसके अंदर दिस द इवन नंबर ऑफ लिंक्स और पिचेस इज रिकमेंडेड बाय द अमेरिकन चेन एसोसिएशन. इनका डॉक्यूमेंट अभी हम विजिट करते हैं, मे बी उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन है कि यू चूज एन इवन नंबर ऑफ पिचेस ऑन अ चेन. अच्छा, बेस्ड ऑन 122 पिचेस आपके पास एक सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा व्हिच इज अराउंड 29.825 इंचेस. और अब एक ही चीज रह गई है वेरीफाई करने के लिए, जो हमने कही थी कि द एंगल ऑफ रैप ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट शुड नॉट बी लेस देन 120 डिग्रीज. तो एंगल ऑफ रैप चेक करने के लिए 180 माइनस 25 जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, दैट यूजेस पिच डिस्टेंस, पिच डायमीटर्स ऑफ द टू स्प्रॉकेट्स
and the center distance. The angle of wrap comes out to be 158 degrees. ये भी valid है, it's more than 120 acceptable है. तो लार्जेस्ट स्प्रॉकेट का वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. तो दैट इज 202 डिग्रीज. So finally you summarize the design by representing the pitch number, the length and the center distance of the chain. And for sprockets you represent single strand है, double strand है, किस नंबर की है और उसकी पिच क्या होगी और उसके साथ नंबर ऑफ टीथ क्या बन रहे हैं. ठीक है, तो जब आपने इसको समराइज कर लेना है तो अब इसके बाद आप मैन्युफैक्चरर कैटलॉग को जो सा वो देख सकते हो, उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट नंबर आपने ऑर्डर करना है इसके लिए. तो पिच नंबर 60 चेन 3/4 इंच इन पिच, 0.75 इंचेस इसकी पिच है. लेंथ इसकी 122 पिचेस है विच इज अराउंड 91.5 इंचेस. सेंटर डिस्टेंस जो आपने चूज किया इट इज अराउंड 29.8 inches maximum. Sprockets are single strand, number 60, 3/4 inches in pitch. Smaller one has 17 teeth, larger one has 65 teeth. Type B lubrication is recommended. यहाँ पे आप एक इसका खाका देख सकते हो, sketch है, 2D representation of the chain drive that you just designed. यहाँ पे आप फर्क देख रहे हो लार्जर स्प्रॉकेट के अंदर और स्मॉलर स्प्रॉकेट के अंदर साइज का जो सा वो काफी ज्यादा फर्क है. तो इसलिए 17 से कम रखने के ऊपर जो सा है वो रिकमेंडेशन जो सी है 17 से कम ना रखने की नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्मॉलर स्प्रॉकेट, वो इसी वजह से आ रही है कि द साइज बिकम्स टू स्मॉल एंड द चेन हैज टू बेंड अराउंड द स्प्रॉकेट टू मच. तो उसकी वजह से उस पर अननेसेसरी स्ट्रेसेस जो से होते हैं वो जमा हो सकते हैं. तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है अमेरिकन चेन एसोसिएशन की तरफ से, उनकी वेबसाइट पे से मैंने डाउनलोड किया है. एंड दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर सिंगल स्ट्रैंड रोलर चेन्स. इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिजाइन फैक्टर्स गिवन है, ड्राइव सिलेक्शन आपने किस तरह से करनी है, एचपी रेटिंग के हिसाब से, आइडलर के लिहाज से, क्वाइटनेस के लिहाज से, जहाँ पे आपको हैवी लोड्स जो से हैं उसको आपने देखना है. तो सर्विस फैक्टर के साथ आपकी जो हॉर्स पावर की जो कंप्यूटेशन है वो दी हुई है यहाँ पे रिक्वायर्ड एचपी के फॉर्म में, जिसको बुक के अंदर डिजाइन एचपी के जो सा होगा नाम दिया हुआ है. सर्विस फैक्टर के लिए इन्होंने टेबल 1 दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं. मल्टीपल स्ट्रैंड फैक्टर हमने देखा, मल्टीपल स्ट्रैंड फैक्टर के नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज़्यादा होने से एग्जैक्टली आप पावर ट्रांसमिशन को डबल नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फैक्टर होता है. फॉर 2 स्ट्रैंड्स इट्स 1.7, फॉर 4 स्ट्रैंड्स 3.3 एंड सो ऑन. सर्विस फैक्टर का टेबल इसमें दिया हुआ है. स्मूथ लोडिंग, मॉडरेट शॉक लोडिंग, हैवी शॉक लोडिंग फॉर इंजन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर्स. बुक के अंदर ये था कि उसने इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हुए साथ में उसने एग्जांपल्स भी शेयर कर दिए ताकि थोड़ा सा सिलेक्शन आसान हो जाए. लुब्रिकेशन के इन्होंने जो सा था वो बताया हुआ है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी लुब्रिकेशन. लुब्रिकेंट विस्कोसिटी को बताया हुआ है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हमने बुक में भी देखी थी. स्प्रॉकेट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या पावर उसकी जो सी खसूसियात होनी चाहिए स्प्रॉकेट्स की. द लार्ज स्प्रॉकेट शुड नॉट एक्सीड 120 टीथ, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है. सेंटर डिस्टेंस के अभी जो हमने देखा 30 to 50 चेन पिचेस इज मोस्ट डिजायरेबल, ये चीज़ दी हुई है. चेन रैप जो एंगल ऑफ रैप स्मॉलर स्प्रॉकेट का 120 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, वो भी दिया हुआ है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे उस तरह की इंफॉर्मेशन जो सी वो दी हुई है. फिर अलाइनमेंट के इश्यूज हैं और एचपी रेटिंग्स के हैं. चेन साइजेस दिए हुए हैं, सिंगल स्ट्रैंड रोलर चेन के साइजेस फॉर एज डिफाइंड बाय अमेरिकन चेन एसोसिएशन. ये बेसिकली पिच लेंथ्स को डिफाइन कर रहे हैं. 25 से लेके 240 तक जो है वो इन्होंने साइजेस दिए हुए हैं. और इसके बाद शुरू हो जाती है इसकी वही साइजिंग के चार्ट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं. तो नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंगली स्पीड के लिहाज से
साइजिंग के चार्ट्स हैं, उसके अंदर वही लुब्रिकेशन की जो सी है वो मेथड्स दिए हुए हैं साथ में। तो वो 25 के लिए अलग था, 25 नंबर चेन के लिए अलग था, 35 के लिए अलग है, 40। अब यहाँ से जो सा ये बुक में ये जो से 3 ग्राफ्स हैं वो ये वाले हैं, 40 वाला है, 40 के बाद 50 वाला मिसिंग है, 60 है उसके बाद, और उसके बाद 80 है। अब यहाँ पे जो 80H लिखा हुआ है, दिस इज फॉर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसके अंदर हमने ये शुरू में थोड़ा सा देखा था कि 80H का मतलब ये होगा कि उसका जो जो लिंक है चेन का वो हैवी है, मतलब वो ज़्यादा मोटाई के साथ बनाया हुआ है, तो इट कैन कैरी मोर लोड्स। 100 के लिए, 100H के लिए एंड सो ऑन। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे चेन साइजेस के लिए ये टेबल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। अप टू 240H ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये अमेरिकन चेन एसोसिएशन की वेबसाइट पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं जाके। बट आई विल शेयर दिस document with you so that you can use it to select other types of chain जो कि बुक में अवेलेबल नहीं है। 40, 60, 80 था, यहाँ पे हम जो से उसके अलावा भी आपको चूज करना चाहो अपने एप्लीकेशन के लिए वो भी चूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर किसी को चेन ड्राइव्स के अंदर, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, इसके डिजाइन प्रोसीजर से रिलेटेड? सर जो हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा वो हमने कहाँ तक बताना होगा? तो सिर्फ इसके बस 10 स्टेप ही बताने होंगे कि हमने ये भी बताना है कि हमने जो चेन सेलेक्ट की कैटलॉग से चेन भी बतानी होगी? अभी तक मैंने इसकी कैटलॉग भी देखी नहीं है, लेकिन इफ आई फाइंड सम कैटलॉग जिस तरह से जो पिछली दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।